जस्ट कंसिडर कि कोई तुम्हारे घर के बाहर कोई बच्चा छोड़ जाता है, तो वो तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। वो तुम्हारा फॉल्ट नहीं था कि कोई उसे आगे तुम्हारे गेट पे छोड़ गया, बट नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर दिस चाइल्ड। हेलो गाइस, दिस इज आरुष वर्मा and today I want to talk about responsibilities, like the accountability of responsibilities. I believe not just me but many of people who I know जो कि ये चीज़ मानते हैं कि you are responsible for everything happening in your life. You are accountable of that. और I believe कि you should be courageous enough to take the responsibility of everything that is happening in your life. It's good to take the responsibility of things that are happening in your life. कोट है स्पाइडरमैन में, with great power comes great responsibilities. इसका नाउंस थोड़ा चेंज कर दो और उसके बाद भी ये कोट ट्रू ही रहता है, with great responsibilities comes great powers. like when when you are taking responsibilities of everything that is happening in your life, that is the moment when you will start taking actions more. तुम अगर ये मानने लग जाओ कि जो चीज़ मेरी जीवन में हो रही है, अच्छी या बुरी, वो सब मेरी वजह से हो रहा है, तब तुम एक्शंस ज़्यादा करने लगोगे, तब तुम शायद ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, शायद नहीं हो ही जाओ। लाइक कंसिडर मी कि अभी मेरा रूम गंदा है और मेरे 2 रूममेट्स और हैं जो अभी रूम में नहीं है। सो मैं ये सोच सकता हूँ कि जैसे कोई कुरकुरे का पैकेट है जो उस रूममेट ने गिराया है और कुछ बिस्किट के कुछ टुकड़े पड़े हैं नीचे जो कि दूसरे वाले रूममेट ने खाया है, और मैं भी थोड़ा गंदा कर रखा रूम को। सो आई कैन ब्लेम दैम कि उनकी वजह से मेरा रूम गंदा है, बट आई कैन टेक द अकाउंटेबिलिटी कि दिस इज़ माई रूम, आई हैव टू क्लीन इट टू, क्योंकि ये मेरा रूम भी है। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ दिस रूम। खैर वो मेरा फॉल्ट नहीं था कि रूम गंदा था, रूम पूरा मेरी वजह से गंदा नहीं था, बट आई एम स्टिल रिस्पॉन्सिबल क्योंकि रूम तो मेरा ही है। बुक है बाय मार्क मैनसन विच इज़ द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। आई जेन्युइनली रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू, और अगर तुम बुक्स रीड करना स्टार्ट करना चाहते हो या नए नए बुक्स रीड करने में, then I would recommend you to read The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. It is better than a lot of books that I've read yet. Like Rich Dad Poor Dad बहुत बेकार लगी मुझे। I don't think कि कोई मतलब है उस बुक का। It's up to you कि अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है तुम उस बुक को पढ़ सकते हो, बट द फर्स्ट बुक आई वुड recommend you guys to read would be The Subtle Art of Not Giving a Fuck, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। I've read Rich Dad Poor Dad, Atomic Habits, Think and Grow Rich, How to Win Friends and Influence People, The Psychology of Money। हाँ, अभी तक ये बुक्स ही पढ़ी है मैंने, and this is the book that I'm currently reading and it's super amazing. Okay, so it says there is a line in this book which is कि fault is the past tense, responsibility is the present tense. I want you guys brainstorm it a little and think what Mark Manson is trying to say here. So yeah, we were talking about being accountable of things that are happening in your life. Okay, so I'm accountable for the college that I'm currently studying in. It was my responsibility to study better, like to study. It was my responsibility to study, and the result that I'm getting from it is the result of what I did. Like if I would have studied better, then probably I would get a better college. And अब जैसा कि जिस लेवल की मैंने पढ़ाई की उस लेवल की मुझे कॉलेज मिल चुकी है। So the point I'm trying to convey here is you should be courageous enough to take responsibility of everything that is happening in your life instead of blaming others. Like Mark Manson ने ये और बोला कि मतलब when he was adult, जब वो adult age में थे तो उस टाइम पे he was in a relationship and he got cheated on. So खैर वो गलती थी उनके पार्टनर की कि उन्हें चीट किया, बट
then after some time he realized कि हाँ there were many things that he did wrong in the relationship, which somehow caused her some problems, like some trust issues. He haven't treated her right. He was not the best boyfriend. तो उसकी वजह से शी चीटेड, लाइक वो अब उन्होंने कुछ गलत किया तो दैट डजेंट गिव हर द रीज़न टू चीट ऑन हिम, बट स्टिल देयर वर मैनी रीजंस जो गलत थे, जो उन्होंने किया, लाइक जो चीट किया वो भी गलत था, बट देयर आर मैनी थिंग्स जो मार्क मैनसन ने गलत की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं कि ओके इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू make the relationship work, to make it better, but it haven't. I take the accountability of that. It's like that. Or it's not कि just consider कि कोई तुम्हारे घर के बाहर कोई बच्चा छोड़ जाता है, you open the door and you see a child in a basket, तो वो तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उस चाइल्ड को कोई छोड़ गया, बट now it is your responsibility to what do you have to do to this child. Do you want to keep him? Do you want to go and give this child to an orphanage, or you want to throw him away, or you want him to be here only? Now it is your responsibility. वो तुम्हारा फॉल्ट नहीं था कि कोई उसे आके तुम्हारे गेट पे छोड़ गया, बट नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर दिस चाइल्ड. दैट विल बी अप टू यू. और जो तुम करोगे वो सारा तुम्हारा रहेगा, वो तुम पे आएगा. यू शुड बी अकाउंटेबल इनफ टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू ब्लेम योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, बट लाइक बी थिंक प्रैक्टिकली, और तुम्हें खुद को रियलाइज हो जाएगा कि हाँ वैन आई हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी. लाइक मोस्ट चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रही है, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तुम्हारी है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ओवर थिंक करने लग जाओ. हर चीज़ जो हो रहा है तुम्हारे पूरी जीवन में ही, तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है उस सारी चीज़ों का ब्लेम तुम खुद पे लेने लग जाओ. ब्लेम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर बोथ अदर थिंग्स. ठीक है, यू कैंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. अगर किसी की डेथ हो जाती तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. दैट वॉज नॉट योर फॉल्ट. दैट वॉज नॉट योर फॉल्ट. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाउ टू टेक दैट ऑन योर सेल्फ, how that affects you. I hope you can understand what I'm trying to say.